Hello and welcome to the lecture series of National Services Scheme NSS of the Albag Educational Institute, Agra. I'm your host, Dr. Arun Pratap Sikarwar. Today we are having with us Dr. Himalaya Singh for a lecture on health and hygiene. He is an epidemiologist and assistant professor at SN Medical College, Agra. Uh, well, since almost 1.5 years, we all are badly affected directly and indirectly with the COVID-19 pandemic, as you all are aware. Now, let me introduce you what is epidemiology and what epidemiologists do for us. Actually, they are very important public health workers who investigate the pattern and causes of disease and injuries. And epidemiologists try to mitigate the negative health outcomes of a disease by various kinds of research, community education, and also formulating public health policies and then helping to get implemented through the government of India. He has done internship and residency trainings at various hospitals before becoming a professor at SN Medical College. So he was associated with the Jamia Hamdard Medical College, New Delhi. He has also worked as a junior residency at Safdarganj Hospital in the pediatric surgery and also at the District Hospital, Agra. Also, he has done research work under a medical project of Indian Council of Medical Research entitled Zero Prevalence and Zero Incidence of Scrub Thymus Infection during epidemic season in the eastern Uttar Pradesh. He has also supervised a pulse polio program at various districts. And also he was assistant professor at FH Medical College in Agra before he joined SN Medical College as an epidemiologist. Right now, Himalaya is busy in the vaccination program as per the government's mandate and also in the vaccine trials of various new vaccines upcoming through the medical college. He had several research publications, conferences, and chapters related to the medical biology. Now, I would like to welcome Dr. Himalaya. Welcome, Dr. Himalaya, to be with us and sharing your time. Okay, now, thank you so much, sir. Yeah, now you can please start your lecture, what you want to enrich with us with this health and hygiene, because it's more pertinent, information in today's COVID-19 pandemic, especially when Omicron is, at the door. So please go ahead. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. And I am very delightful that when I got to know that you and your institution are inviting me for this lecture. So always, as a public health specialist, I always happy to present these type of presentations or lectures in front of young generation, because this generation is going to be the future of this nation. So if they are well aware and they are well aware about their helpful for the growth of our nation. So without wasting time, I start with my lecture. Today's session is health and hygiene in COVID-19 pandemic. So we all know we are suffering from this pandemic, and what is pandemic? What a pandemic is? It is if any disease start increasing in number, not only in a particular area but in a large geographical area, so it come under the category of pandemic. So before this, there are several pandemic occurred in our world. So this time we are suffering from this COVID-19 pandemic. So what is this COVID-19? COVID-19, it's prevention and control. That is how we have to maintain the hygiene. And then after that, what is measures for healthy to stay healthy at home. Okay, what is COVID-19? COVID-19, the full form of COVID-19 is coronavirus disease. That is CO is the coronavirus, COV is the coronavirus, and D is the disease. And 2019 is the 19 from 2019. So COVID-19 means the coronavirus disease.
and it is caused by the coronavirus, which is named as SARS coronavirus 2. So what is the mode of transmission? Transmission means how it spread from one person to another person. So COVID-19 is a very highly transmission or contagious disease which transmit from one person to another with the help of droplets. So whenever any infected person or cough, it transmit from that person to another person, also from air, as well as with the close contact like shaking hand or with touching the other infected surfaces. So COVID-19 is an infectious disease which is discovered recently, and COVID-19 virus spread primarily through the droplets of saliva or discharge from the nose when the infected person sneeze or cough. Then this virus enter the body via nose, mouth or eyes, and some recent study also suggests that this virus may be airborne and can be spread through fine infected droplet that remain suspended in the air in closed air conditioned environment, cabs or buses, shopping malls, theaters, due to the absence of cross ventilation, even when you are not in with infected person. So now what are the signs and symptoms? If someone get infection from another infected person, then what will he feel? That it will be he will develop dry cough, cold, sore throat. These are the primary first symptoms. Later on, it will be fever with chills, fatigue, tiredness, muscle weakness, headache, congestion or runny nose, shortness of breath or difficulty breathing, loss of appetite, taste and smell. And other complication may be the pneumonia. So when the lungs got infected, pneumonitis, there is a condition that due to the virus, the lung parenchyma get infected and it create pneumonitis, and that is the complication of this virus. Yeah. Now this is the basic introduction, but the main focus of this session is the prevention and control of this COVID-19. So with the help of our awareness only, we can prevent this pandemic. So how can we do this? These are the major, we all know that we have to keep hand hygiene, respiratory hygiene. We have to concern about our high risk group, that is the old age group or the group with the comorbidities or different diseases. जिन लोगों को और बीमारियां हैं, पहले से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो क्रोनिक डिसीजेस हैं जिनकी इम्यूनिटी जिसमें कम हो जाती है, तो they are at the high risk group. So we have to concern about that. And another thing is social distancing, जिस हम लोगों ने सबने पालन भी किया और काफी ये सुनने में आया. इससे पहले हम इतना इसमें ध्यान नहीं देते थे, मगर इस तरह की इन्फेक्शियस डिसीज में सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हैंड हाइजीन? हैंड हाइजीन इज टू वॉश योर हैंड ऑफन विद द सोप एंड वाटर फॉर 40 seconds, especially after you have been in a public place or after blowing your nose, cough or sneezing. होना चाहिए. तो we have to wash our hands with soap and water. First thing is soap and water. If it is not, so in hand hygiene, another thing is which not we have to do, that we should not touch our eyes, nose or mouth often, especially when we are in the public place. We try to not to touch the surfaces which are in the public place, that like doors, knobs, doorbells, elevator buttons, ATM machine surfaces, module, and other handles of car and public place handles. So we try to avoid it, touching it often. And if we touch it, we can use hand sanitation by sanitizing our hand with alcohol based sanitizer, or we can best is can wash our hand with soap and water. So what are the steps of hand washing? Simple है.
हम लोग हाथ धोते हैं, हम सबको पता है कि हाथ धोना चाहिए, मगर हाथ ऐसा है जो कई जगह से मुड़ता है। हाथ के अंदर बहुत सारी हड्डियां होती हैं, जिसकी वजह से हम हाथ को मुट्ठी बना सकते हैं, हाथ खोल सकते हैं, पंजा बना सकते हैं। तो उसके बीच में कई ऐसी जगह हो जाती हैं जिसके अंदर कीटाणु रह सकता है, और वही कीटाणु हमें हमारे मुंह तक जब पहुंचेगा, नाक तक पहुंचेगा, तो वो अंदर जाके हमें इन्फेक्ट कर सकता है। तो अच्छे से हाथ धोना बहुत जरूरी है, जिसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको जी सर शेयर कर रहा हूं। तो कुछ स्टेप्स हैं जिसके अंदर हम हाथ धोना बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और ये स्टेप 7-8 स्टेप बता देते हैं बहुत लोग, मगर वो याद नहीं रहते। तो उसके लिए हमें एक निमोनिक्स याद रखना है, सुमन, है ना। सुमन एक ऐसा नाम है जो कॉमनली हम जानते हैं। तो सुमन के, जिसमें एस से है सीधा, तो अपने हाथ को हम सीधा रख के और रब कर सकते हैं फॉर फ्यू टाइम्स। उसके बाद यू से उल्टा, हम एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के उल्टा करके उसको रब कर सकते हैं, एस यू। आई से इंग्लिश में है इंटरलॉकिंग, उंगलियों के बीच में जो इंटरलॉक्स होते हैं, हम इनको रब कर सकते हैं 4 से 5 बार, इंटरलॉकिंग। उसके बाद एम से मुट्ठी, अपनी मुट्ठी को बंद करके दूसरी मुट्ठी से रब करना है अच्छे से, जिससे कि हमारे नकल्स और ऐसे एरिया जिस पे हम यूजली नहीं रब करते हैं वो सारे रब हो जाएंगे। तो एक एक करके दोनों तरफ में हमें करना है, दोनों मुट्ठी को। उसके बाद ए से अंगूठा है, अंगूठे को दूसरे हाथ से पूरा पकड़ के और उसको रब करना है, ए से अंगूठा। एन से नाखून, अपने एक हाथ के नाखून को इस तरीके से पकड़ के दूसरे हथेली पर रब करेंगे, ताकि नाखून के अंदर पानी और साबुन जाए और वो अच्छे से साफ हो जाए। दोनों हाथ का ऐसे ही करना है 4 से 5 बार, 4 से 5 बार। और लास्ट में के से कलाई, है ना। तो जो मुट्ठी के नीचे की कलाई होती है, दोनों तरफ हाथों पे हम इस तरीके से रब करेंगे। तो ये एक तरीका है जिसमें हाथ के हर एक पार्ट को हम अच्छे से धो सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो हैंड सैनिटाइज करना हो अच्छी तरीके से, अगर आप कहीं बाहर से घर पे आ रहे हैं तब, या फिर हैंड वॉश सबसे अच्छा है, पानी और साबुन से हैंड वॉश करें। और उसके लिए ये 6 स्टेप्स को याद रखें, जिसके लिए नाम आपको बस याद रखना है, सुमन के, है ना। तो एस से सीधा, यू से उल्टा, आई से इंटरलॉकिंग, एम से मुट्ठी, ए से अंगूठा, एन से नाखून और के से कलाई। तो सुमन के करके आप धोएंगे हाथ, और लगभग इसको करने में आपको 40 सेकंड लगेंगे। तो 40 से 45 सेकंड में आप अपने हाथ को एकदम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई भी तरीके का कीटाणु से डरने की आपको फिर आवश्यकता नहीं होगी, है ना। ऐड की तरह नहीं है कि लाइवो का जैसे ऐड आता है कि 10 मिनट में हाथ धो दिया, तो वैसे नहीं करना है। हमें अच्छे से हाथ धोने के लिए इतना स्टेप तो कम से कम परफॉर्म करना होगा। तो ये तो हैंड हाइजीन की बात रही। दूसरा रेस्पिरेटरी हाइजीन। तो रेस्पिरेटरी हाइजीन के अंदर हमें क्या चीज, व्हाट वी हैव टू डू, दैट डू यूज ए हैंडकरचीफ और ए टिश्यू टू कवर योर फेस व्हाइल स्नीजिंग और कफिंग। कभी भी छींक या कफ करने से पहले बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि हमेशा अपना रूमाल अपने पास रखें या कोई टिश्यू अपने पास रखें, जिससे जब भी स्नीज आए तो हमें कफ या स्नीज में उसको अपने मुंह के पास रखना है, ताकि हमारे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे लोग को इन्फेक्ट ना करें। सेकंड थिंग इज डू थ्रो द यूज टिश्यू इमीडिएटली इनटू ए क्लोज डस्टबिन। हमेशा क्लोज डस्टबिन के अंदर आप इसको डिस्पोज कर दें। जो आपका हैंडकरचीफ है उसको आप फोल्ड करके अपने पॉकेट में रखें और उसको अपना धुलवाएं। डू कवर योर स्नीज इनटू योर बेंट अपर आर्म। अगर आपके पास ऐसा होता है कि टिश्यू नहीं है ना, हैंडकरचीफ नहीं है, और ये तो ऐसा है कि आपको कभी भी छींक आ सकती है, खांसी आ सकती है, तो यूज योर बेंट अपर आर्म इन केस यू डोंट हैव कैरिंग, यू आर नॉट कैरिंग ए टिश्यू और हैंडकरचीफ। तो इस तरीके से कोहनी के बीच में जो अपर आर्म की जो बेंट एरिया होता है वहां पर आप छींक सकते हैं। ज्यादातर हम लोगों की आदत होती है हम इस तरीके से हाथ रख के और छींक देते हैं, जिसकी वजह से वो सारा ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हमारे हाथ में आ जाते हैं, और उससे हम जब चीजों को सरफेस को टच करेंगे हम अलग अलग जगह पे इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें अगर कोविड नहीं है तो हम इन्फेक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी रेस्पिरेटरी डिसीजेस हैं। इसलिए हमें ये बेसिक रेस्पिरेटरी हाइजीन समझना बहुत जरूरी है और करना बहुत जरूरी है। तो इनको खुद भी आप फॉलो करें, और जब भी लोगों को आप देखें तो उनको बहुत प्यार से आप समझा भी सकते हैं, टोक सकते हैं। टोकने का मतलब ये नहीं कि उनको उल्टा सीधा कह के, प्यार से आप उनको समझा सकते हैं कि आप इस तरीके से करें। और धीरे धीरे सब लोगों को जब ये आदत पड़ जाएगी तो अपने आप ही इस तरह की रेस्पिरेटरी डिसीजेस फैलना ही बंद हो जाएंगी,
डू वॉश योर हैंड इमीडिएटली आफ्टर यू हैव कवर्ड योर स्नीज्ड और कफ एरिया। अगर गलती से आपने नाक या मुंह पे हाथ रख लिया है छींकने में, हो जाता है आमतौर पे, तो आप अपने हाथ जाके तुरंत धो लें, ठीक है। इसके अलावा व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वेयर ए मास्क, है ना, फेस मास्क, और हमेशा वो कवर करें। अगर आपके पास इलास्टिसिटी वाला मास्क है तो उसके बैंड को प्रॉपर तरीके से ईयर के अराउंड कवर करके रखें। अपने नोज ब्रिज से लेके चिन के नीचे तक पूरा मास्क कवर हो, ताकि आपके ओपन एरियाज जो है नोज और माउथ वो अच्छे से कवर हो जाएं। और अगर आप पे टाई करने वाला है तो उसको हेड के टॉप मोस्ट पार्ट पे और उसके बेस पे, अपनी नेक पे उसके टाई को बांध के रखें, ताकि वो पूरा कवर रहे, टाइट रहे, है ना। बहुत से लोग खुला मास्क रखते हैं, नीचे लटका लेते हैं। दैट्स ऑल आर द बैड रेस्पिरेटरी हाइजीन हैबिट्स। रेस्पिरेटरी हाइजीन में हमें जो नहीं करना है वो क्या है? डू नॉट यूज अदर वे ऑफ कवरिंग योर फेस लाइक पल्लू ऑफ साड़ी, ऑफ चुन्नी और गमछा, है ना। ज्यादातर लोग पल्लू रख लिया, वो कर रही है, तो वो हर जगह टच रहता है, अलग अलग जगह हम उससे हाथ पहुंचते रहते हैं, है ना। और उसी चीज को हम मुंह पे फिर लगा लें तो वो पहले से ही हो सकता है इन्फेक्टेड हो, और हम अपने अंदर और इन्फेक्शन लेने, बचाने की वजह हम और इन्फेक्शन ले सकते हैं। एंड अनदर थिंग वी नॉट टू डू इज वी शुड नॉट स्पिट इन द ओपन एरिया। ऑलवेज स्पिट इन द वॉश बेसिन और स्पिटॉन्स जो पब्लिक प्लेसेस में रखे रहते हैं, और खुले में नहीं करना है। एंड इन रिगार्डिंग टू मास्क, वी शुड नॉट वेयर मास्क अंडर आवर नोज और माउथ, है ना। वी शुड नॉट टच आवर मास्क अगेन एंड अगेन। हम एडजस्ट करते रहते हैं, इधर हिलाते रहते हैं, वो सारी चीजें मास्क के यूज को एकदम खत्म कर देती हैं। तो हाउ टू वेयर मास्क? क्लीन योर हैंड बिफोर यू पुट योर मास्क एज वेल एज बिफोर एंड आफ्टर यू टेक इट। अपना मास्क पहनने से पहले और उसके बाद में आप उसको अपने हाथ को जरूर धोए। मेक श्योर इट कवर योर नोज, माउथ एंड चिन। आपकी नोज से लेके और चिन के नीचे तक उसके दोनों एंड्स होने चाहिए, जिसकी वजह से आपका पूरा नाक और मुंह कवर रहे। व्हेन यू टेक ऑफ मास्क, स्टोर इन ए क्लीन प्लास्टिक बैग, है ना। अगर आप डिस्पोजेबल मास्क यूज कर रहे हैं, सर्जिकल मेडिकल मास्क यूज कर रहे हैं, तो उसको आप डिस्पोज कर दें इन ए कवर्ड डस्टबिन। और अगर आप लेनिन का या अपने फैब्रिक का मास्क यूज करते हैं, तो आप उसको एक प्लास्टिक बैग में अलग से अपने पॉकेट में रखें, जिसमें आप उसको स्टोर करें। कभी आपको उतारना पड़ रहा है, कहीं यूज करने के बाद उसको रखना पड़ रहा है, तो आप उसके इलास्टिक एरिया से उतारें। कभी भी ऐसे बीच में से पकड़ के या उसको खराब करने की जरूरत नहीं है। उसको आप उतार के रखें और उसको घर पे जाके फैब्रिक मास्क को धुलवा सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। और जो वॉल वाले मास्क बीच में आपने देखे थे बहुत लोग पहन रहे थे, दैट इज नॉट फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज, तो उनको पहनने की जरूरत नहीं है। नाउ सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग वाज हैंड हाइजीन, सेकंड थिंग वाज रेस्पिरेटरी हाइजीन, एंड अनदर इज सेफ एनवायरनमेंट। हाउ टू क्रिएट ए सेफ एनवायरनमेंट अराउंड अस। सो वी हैव टू अवॉइड 3 C's, 3 तरह के C, मतलब क्लोज, क्राउडेड और क्लोज कॉन्टैक्ट। क्लोज क्राउडेड एरिया को और क्लोज कॉन्टैक्ट को छोड़ना है ना। क्लोज कॉन्टैक्ट किसी से ज्यादा घुल मिल के एकदम गले मिलना, हाथ मिलना। जब तक पेंडेमिक है, जब तक उस चीज को हम ग्रीट कर सकते हैं हाथ जोड़ के, है ना, लोगों को बोल के हम ग्रीट कर सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ हम हाथ मिलाएं, है ना, और उनसे गले मिलें। तो हमें क्लोज कॉन्टैक्ट को कम करना होगा। हमें क्लोज और क्राउडेड एरिया के अंदर नहीं जाना होगा, हमें वहां पर भी अपने आप को दूरी बना के रखनी होगी। मीट पीपल आउटसाइड, अगर हमें कहीं मिलना पड़ रहा है तो आउटसाइड मीटिंग्स हम रख सकते हैं, आउटडोर गैदरिंग हम रख सकते हैं। दीज आर सेफर देन द इंडोर वंस, एंड particularly in indoor area are smalls and without outdoor air coming in. So हमें मेनली ध्यान रखना है क्रॉस वेंटिलेशन। अगर हमारे पास, अगर इंडोर एरिया में भी हम कहीं पर हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। अभी हम कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो वहां पर एसी का यूज या फिर क्लोज एरिया करके रखने की जरूरत नहीं है। हम कोशिश करें कि विंडोज खुले रहें और कम से कम लोग वहां पर रहें। सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग फॉलो कर ही रहे हैं। If you can't avoid crowded or indoor settings, take these precautions. Open a window to increase the amount of natural ventilation when indoors, and also always wear mask in indoor gatherings. Another thing to prevent this disease is to get vaccinated. So vaccination जब से कोविड आया, और ये बहुत नई चीज हमें देखने को मिली कि अब तक कोई भी डिसीज को
डिसीज के लिए वैक्सीन को क्रिएट करने में बहुत लंबा समय लगता था, एटलीस्ट 4 से 5 साल तो मिनिमम चाहिए होते थे हमें उसको ट्रायल फेज में, ह्यूमन ट्रायल फेज में लाने के लिए। मगर जैसे ही कोविड आया और हमारी टेक्नोलॉजीज इतनी आगे थी, इतने सब पूरे कंट्रीज में मिलकर काम करने की वजह से हमारे पास बहुत जल्दी साल भर के अंदर अंदर वैक्सीन आ गई। और वी शुड प्राउड दैट हमारे कंट्री ने, हमारे कंट्री के साइंटिस्ट ने बहुत जल्दी इस पर काम किया और इंडिया अपनी वैक्सीन को यूज कर रहा है। तो हमने वैक्सीन बनाए, और वैक्सीन का काम क्या होता है, जब ये हमारे बॉडी में डाली जाती हैं तो ये वायरस का ही एक पार्ट होती है जो कि हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को क्रिएट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज रहेंगी और एक्चुअल में जब भी इन्फेक्शन होगा तो उससे लड़ने के लिए हमारे पास पहले से ही एंटीबॉडीज रहेंगी। और अगर ये कम भी हो जाती हैं तो जब नेक्स्ट टाइम कभी लंबे समय से, मान लो मेरे को आज से 6 महीने साल भर पहले वैक्सीन लग चुकी है, अगर 1 साल बाद 2 साल बाद इन्फेक्शन भी आएगा तो बहुत जल्दी मेमोरी सेल तैयार हो जाएंगे और वो हमारे बॉडी को याद होगा कि इस तरह का इन्फेक्शन पहले भी आया था जो कि वैक्सीन फॉर्म में आया था। तो एक्चुअल इन्फेक्शन आने पर वो मेमोरी सेल से 2 से 3 दिन में बहुत जल्दी एंटीबॉडीज शरीर के अंदर क्रिएट हो जाएंगी। तो वहीं अगर जो अनइम्यूनाइज्ड होंगे या नॉन वैक्सीनेटेड लोग होंगे, उनको जब 1 हफ्ता या 2 हफ्ता लगेगा एंटीबॉडीज उस लेवल तक पहुंचाने में, तब उससे पहले जब वैक्सीनेटेड लोगों के अंदर 2 से 3 दिन में एंटीबॉडीज आ जाएंगी, और जिसकी वजह से हम कॉम्प्लिकेशंस को बता सकते हैं। वही बीमारी जब 2 से 3 दिन में ही खत्म होने के कगार पे आ जाएगी, वहीं अगर वो 14 दिन तक अगर शरीर के अंदर होगी और वायरस अपने ग्रोथ करता रहेगा तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सबसे अच्छा एक तरीका लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन जो है वो हमारे पास वैक्सीनेशन है, और उसके लिए हमारे पास भरपूर मात्रा में वैक्सीन भी हैं इंडिया के अंदर। तो एक ये तरीका हो गया। तो ये हमारे कुछ ऐसे मेजर्स थे जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं और आगे जाके इसको कंट्रोल फेज में ला सकते हैं, है ना। इसके बाद हमें अपने ऊपर क्या ध्यान रखना है, हमें जो स्पेशली हेल्थ के लिए ध्यान रखना है, उसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से हम अपने लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, घर बैठे बैठे लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। और सिर्फ कोविड ही नहीं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां उनसे हम दूर जा सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में इन्फेक्शियस डिसीज एक पेंडेमिक के रूप में तो आ रही है, मगर इन्फेक्शियस डिसीज जिस तरह से पहले लोगों के लिए मॉर्बिडिटी का कारण हुआ करती थी, उस तरीके से अब हमारे लिए नहीं है। अब हमारे लिए नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस वो ज़्यादा चिंता का विषय है। लगातार बहुत सारे केसेस बढ़ते जाते हैं, डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के, कार्डिक डिसीजेस के, है ना, कैंसर के। तो ये सारी चीज़ें हमारी टेक्नोलॉजी आने की वजह से, हमारी इनएक्टिविटी होने की वजह से, हमारे डाइट में चेंज होने की वजह से, लाइफ मॉडिफिकेशन हो, सेडेंटरी लाइफ हम लोग ज़्यादा तक जी रहे हैं, उसके चेंजेस की वजह से डिसीज़ के अंदर भी एक ट्रांजिशन आया है, चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से पहले कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से बहुत मौत हुआ करती थी। टीबी से बहुत लोग मर जा रहे हैं, लेप्रेसी से मर जा रहे हैं। अभी हम लेप्रेसी के केस देख ही नहीं पाते, बहुत कम केसेस मिलते हैं, मगर पहले ऐसी बहुत सारी बीमारियां थी जो बहुत ज़्यादा डेथ जिनकी वजह से होती थी और जो इन्फेक्शियस थी। मगर अब सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। अब इन्फेक्शियस डिसीज को जहां हम कंट्रोल कर लेते हैं बहुत जल्दी, वहीं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पे हमें ध्यान देना है। तो ये जो एक तरीका है जो हम अपने घर पे रह के हेल्दी रह सकते हैं, ये दोनों पे इफेक्ट करता है, इन्फेक्शियस डिसीज पे भी और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज पे भी। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के उपाय बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कैंसर अगर हो जाता है और लास्ट स्टेज में हो जाता है तो फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हमारे पास नहीं बचते हैं। तो उसके लिए बेटर है कि हम इसी तरीके से प्रिवेंशन करें। तो इसलिए ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए तो बहुत ही जरूरी है, और कम्युनिकेबल तो इससे आराम से बची जाती हैं। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए हमें घर पे बैठे बैठे ध्यान रखना है। वी हैव टू टेक हेल्दी डाइट, ऑलवेज बी एक्टिव एंड हैव ए ग्रेट मेंटल हेल्थ। सो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। व्हाट इज हेल्दी डाइट? तो ईटिंग ए हेल्दी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द पेंडेमिक, COVID-19 pandemic. What we eat and drink can affect our body. Ability to prevent, it create the ability to prevent and fight and recover from the infection. अगर हम अच्छा खाना पीना खा रहे हैं और हेल्दी डाइट ले रहे हैं, अच्छे से मतलब ये नहीं, हमें बैलेंस डाइट लेनी है, हमें हर तरह का खाना खाना है, और हम हर तरह का अगर खाना लेते हैं और जो ऐसा खाना जो हमारे शरीर को वीक कर रहा है, उससे हम बचाव कर रहे हैं लंबे समय से, तो हमारी बॉडी पहले से तैयार होगी और जो रिस्पॉन्स होने चाहिए, है ना। एक कोई मोटा आदमी है, अगर नॉर्मली हम फिजिकली देखते हैं, अगर कहीं लड़ाई हो जाती है तो इसको उसके रिस्पॉन्स में
बहुत एक कोई मोटा आदमी है उसका और एकदम फिट है, उसके रिस्पॉन्स में तुरंत मतलब हमें देख के ही अंतर समझ में आता है, वो एकदम से उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा। मगर जो आलसी आदमी होगा, मोटा आदमी होगा, उसको थोड़ा सा समय लगेगा। वैसे ही शरीर के अंदर होता है, अगर हमारे अंदर सेडेंटरी लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई है तो हमारे जो सेल्स हैं वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, है ना। और वहीं हम रेगुलर एक्टिव हैं, हम बहुत ज्यादा बाहर की दुनिया से एक्सपोज रहते हैं, छोटे मोटे इन्फेक्शन हमारे अंदर आते रहते हैं, तो हमारी बॉडी पहले से प्रिपेयर रहती है और हम तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये हेल्दी डाइट होना, है ना, एक्टिव लाइफ होना हमारे हर तरह से हमारे लिए फायदेमंद होता है, ताकि हम सिर्फ कोविड-19 नहीं और बीमारियों से भी बच सकें। और अगर हम और बीमारियों से बचेंगे और साथ में अगर पेंडेमिक में हमें ये भी हो जाता है तो हम बेटर साइड पे हैं, सेफ साइड पे हैं, है ना। अभी जैसे बताया, हाई रिस्क ग्रुप जो है, जिनको पहले से ही कुछ बीमारियां हैं, जो पहले से हाइपरटेंसिव हैं, ओबीज हैं, है ना, वो हाई रिस्क पे हैं, उनको पहले कोविड-19 हो सकता है। तो हम उससे बचे हुए हैं कि हम पहले से ही हम और बीमारियों से तो बचे हुए हैं, तो अब अगर कोई पेंडेमिक आता भी है, कोई नई बीमारी भी आती है, तो उससे होने का खतरा अभी हमें कम है। While no food or diet supplement can prevent or cure COVID-19 infection, healthy diet are important for supporting immune system. तो हम जो healthy डाइट की बात करते हैं वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन को ही खत्म कर देगा। बहुत सारी ऐसी, अभी आप लोगों ने 2 साल में देखा कि बहुत सारी चीजें आई हमारे बीच में कि हमने काढ़ा पी रहे हैं, है ना, अलग अलग चीजें ले रहे हैं, और कुछ लोग उसको एक्सेस में भी कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मगर ये कोविड-19 को सिर्फ कोविड-19 पे इफेक्ट करेंगी और उसी को बचा लेंगी या उसका ट्रीटमेंट कर देंगी, ऐसा नहीं है। तो इस चीज को हमें हमेशा दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है। हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, मगर हमें एज ए कॉन्शियस सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमें ध्यान रखना है, देखना है क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए सही है और क्या इंफॉर्मेशन हमें आगे फॉरवर्ड करनी है ना। और इस डिजिटल वर्ल्ड में तो ऐसा बहुत कॉमन होता है कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाएं। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के, इस तरीके से कोविड चला जाएगा, इस तरीके से विटामिन सी की टैबलेट खाते हैं लोग, है ना। बहुत सारी विटामिन सी शॉर्ट हो गई मार्केट में, लोगों ने घर पे रखना शुरू कर दिया कि इससे खत्म हो रहा है। तो कोविड उससे खत्म नहीं हो रहा है। विटामिन सी इज वेरी हेल्पफुल टू स्ट्रॉन्ग आवर इम्यून सिस्टम। तो वो ओवरऑल सब डिसीज को हेल्प करने के लिए है। मगर कोविड-19 में अगर हम ज्यादा खा लेंगे, एक टैबलेट की जगह हम 4 टैबलेट खा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि हम उस बीमारी से बच जाएंगे, हो सकता है वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान कर दे। तो गुड न्यूट्रिशन कैन ऑल्सो रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ डेवलपिंग अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग ओबेसिटी, हार्ट डिसीज, डायबिटीज एंड अदर सम टाइप ऑफ कैंसर्स। तो न्यूट्रिशन अच्छा होना, हमारे पास जो कोमॉर्बिडिटीज हैं और सारी जो बीमारियां हैं जिसकी वजह से कोविड हमें जल्दी लग सकता है, उन सबको बचाने में हेल्प करेगा। तो इसलिए हमें हेल्थ या न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट या न्यूट्रिशन पे विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब कुछ टिप्स हैं मेरे पास जो आपको, मतलब हम कह रहे हैं कि हेल्दी डाइट हो, ये हो, पर हो क्या उस डाइट के अंदर वो हम जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ईट ए वेराइटी ऑफ फूड इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, है ना। एवरी डे ईट ए मिक्स ऑफ होल ग्रेन्स like wheat, maize, rice, legumes like lentils and beans, plenty of fresh fruits, vegetables, with some food from animal sources also. तो हमें मिक्स लेना है। ऐसा नहीं है कि हम एक टाइप का खाना खाएंगे और उसी से सब कुछ मिलेगा। बहुत हमारी डाइवर्सिटी इतनी है नेचर के अंदर कि हमारे पास बहुत अलग अलग तरह की चीजें हैं, और अगर हम उसको मिक्स करके खाएंगे तो वो हमारे लिए एक परफेक्ट बैलेंस डाइट बन के तैयार होती है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, फाइबर भी लेना है, जिसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स है वीट, है ना। तो हमें होल ग्रेन अगर वीट का लेते हैं तो हमारे पास गुड अमाउंट ऑफ फाइबर भी मिलेगा और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी मिलेंगे, मेज, राइस, ये सब ले सकते हैं। दूसरा, दाल हम हर तरह की ले सकते हैं, फ्रूट, सब्जियां, ये सारी चीजें। तो अगर हम देखें इसको गौर से, तो हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड थाली होती है जो हमारे घरों में बनती है, तो बहुत अच्छे से प्लान करके वो ऐसे बनाया गया था, जिसके अंदर कुछ चावल, 2 रोटी, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी और दही रखी हुई है ना। जिसके अंदर एक दही एनिमल सोर्स भी हो गया, जो कि हमें बहुत सारी चीजें प्रोबायोटिक की तरह काम कर रही है और इस सारे खाने को पचाने में भी हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से हमारा खाना सर्व किया जाता है हमेशा। अगर हम साउथ में भी जाएंगे तो वहां पर भी देखेंगे तो सामर के अंदर सब्जी, दालें मिलेंगी, है ना, चावल मिलेंगे, कुछ और इस तरह से। तो हमारे हर क्षेत्र में इस तरीके से खाने को बनाया गया है कि वो हमारे लिए एक परफेक्ट डाइट की तरह काम करे। तो हमें उसी से स्टक रहना है। हमें
जो स्नैक्स होते हैं, है ना, जो फास्ट फूड होते हैं, उसकी तरफ ज्यादा जाएंगे। वो कभी कभार टेस्ट के लिए तो ठीक है, मगर बॉडी में वो हमेशा दिक्कत करेंगे। तो चूज होल ग्रेन फूड लाइक अनप्रोसेस्ड मेज, मिलेट, बाजरा ले सकते हैं, ओट्स, व्हीट, ब्राउन राइस, है ना। और ये आपके पास वेराइटीज हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यही लेना है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आपको थोड़ी थोड़ी हर चीज में से लेनी है, ताकि हमारे पास एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फाइबर भी हमारे पास रेगुलरली पहुंचे। फॉर स्नैक्स चूज रॉ वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड अनसॉल्टेड नट्स, है ना। कुछ ऐसा समय है जैसे इवनिंग में हम लोग बैठे हुए हैं, तो क्या किया, समोसा खा लिया। तो समोसा जो है वो हमें सिर्फ रिफाइंड चीजें दे रहा है, रिफाइंड ऑयल में है ना। रिफाइंड मैदा व्हीट से बनना है, जिसके अंदर बिल्कुल भी फाइबर नहीं है, और स्टार्च पूरा आलू है ना, और उसके अंदर मसाले बहुत सारे हैं। तो ये सारी स्नैक्स मिला, हमें टेस्ट लगा, टेस्टफुल होता है बहुत ज्यादा, मगर उसके अंदर हम अगर देखेंगे तो कोई भी न्यूट्रिशियस चीज हमारे पास नहीं गई है। वहीं हम अपने स्नैक्स को न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हम फ्रेश फूड, रॉ वेजिटेबल्स, उसका कुछ अलग अलग करके बना के, है ना, क्रिएटिवली हम उसको बना के बच्चों को दें, और या खुद हम लोग खाएं। तो उस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा नमक नहीं खाना है। हमारी जो डाइट्स बनी हुई हैं वो इस तरीके से हैं, जो भी फास्ट फूड है, अगर उसमें आप देखेंगे ज्यादातर रिकमेंडेशन से ज्यादा सॉल्ट होता है। अगर हम देखें तो हमारी जो लिमिट है वो 5 ग्राम्स की है पर डे, हम 5 ग्राम, और अगर हम गर्मियों में हैं, पसीना ज्यादा बहा रहे हैं, तो 7-8 ग्राम तक ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं। इससे ज्यादा का नमक हमारे शरीर में हमेशा नुकसान करेगा। और अगर हम एवरेज इंडियन डाइट जो हमारे बच्चे, आप लोग, हम लोग खाते हैं, अगर हम उसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो हम आराम से 15 ग्राम तक खा लेते हैं, है ना। तो जो रिकमेंडेड है उससे हम 3 गुना ज्यादा सॉल्ट इनटेक रहती है ना, क्योंकि ज्यादातर फूड हमारा सॉल्टी होता है ना। हम बहुत ज्यादा ब्लेंड फूड खाने के आदी नहीं है, हम लोगों को नमक हर चीज में चाहिए हो। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि जो एड ऑन सॉल्ट है फूड में, वो हम ना लें, है ना। ऐसी कोई भी चीज ना लें जिसमें अलग से नमक डला हुआ है, अचार वाली चीजें ना लें, है ना, ज्यादा नमक वाली चीजें ना लें। व्हेन कुकिंग और प्रिपेयरिंग फूड यूज सॉल्ट स्प्रिंकलिंग एंड रिड्यूस यूज ऑफ सॉल्टी सॉस। ठीक है, इस तरीके से बहुत ज्यादा वैसे सॉस वगैरह नहीं यूज करने चाहिए, कम से कम खाने चाहिए, इसमें बहुत सॉल्ट होता है। इफ यूजिंग कैंड और ड्राई फूड, जो कि बहुत कम हमारे यहाँ यूज होते हैं, मगर अब नए सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स के अंदर वो भी बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, तो हमें कोशिश करना है कि जो एडेड सॉल्ट और उसके अंदर सब मार्किंग रहती हैं, है ना, हमारे पैक्ड फूड पे, तो हम अपने हेल्थ को कंसर्न रखते हुए वो सारी चीजों का ध्यान रखें। रिमूव द सॉल्ट शेकर्स फ्रॉम द टेबल। इसका सीधा सा एक सिंपल वो है कि अपने आसपास जितने भी हम नमक की डिब्बियां रखते हैं, सॉल्ट शेकर्स रखते हैं, उन सबको नहीं रखें, है ना। जरूरत पड़ने पर ही हम नमक लें, और खाने में जितना डलता है उतनी लें। हम एड ऑन फ्लेवर के लिए हम कभी भी सॉल्ट को यूज ज्यादा ना करें, तो उससे हमारा कंट्रोल रहेगा। चेक द लेवल ऑफ फूड एंड चूज प्रोडक्ट विद द लो सोडियम कंटेंट। जैसा बताया कि हर प्रोडक्ट के ऊपर वो डिटेलिंग होती है, तो हमें देख लेना है, खासतौर से अडोलसेंट एज में और बच्चों में, है ना। 20 साल से अंदर अंदर हमें बड़े ध्यान से इस चीज का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये सारी चीजें ग्रोथ पे हमेशा इफेक्ट करती हैं। और उसके बाद जैसे ही हम 40 से ऊपर हो जाते हैं, जब ओल्ड एज में जाते हैं, तो हमें फिर इन चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। ईट मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट एंड ऑयल। हमें ऑयल और फैट बहुत जरूरी है, और मॉडरेट अमाउंट में लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या बहुत से लोग डाइट कॉन्शियस होने के कारण बिल्कुल भी खाना बंद कर देते हैं, तो बोथ आर हार्मफुल। अगर हम बिल्कुल नहीं खाएंगे तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जो सिर्फ फैट की वजह से ही बनते हैं, है ना। हमारे जो ग्लैंड्स हैं, हमारी जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो फैट की वजह से कुछ विटामिन्स को बनाती हैं। फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करते हैं, और हमारे हार्मोन्स को बनाते हैं। अगर हम फैट बिल्कुल भी नहीं लेंगे तो धीरे धीरे हमारे पास उनकी सबकी कमी होती जाएगी। और अगर हम एक्सेस लेंगे तो वो हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट होगा, हमारे स्किन के नीचे डिपॉजिट होगा, जो कि हमें आगे जाके और बीमारियां करेगा। तो हमें फैट लेना है, मगर एक नपे तुले अमाउंट में, मॉडरेट अमाउंट में लेना है, और मिक्स फैट लेना है। कभी भी ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं हम लोग तो सिर्फ ऑलिव ऑयल ही ले रहे हैं, या सिर्फ हम राइस ब्रेन ऑयल ही ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें मिक्स लेना है ना। हम सैचुरेटेड फैट भी लें, हम नॉन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट भी लें। घी बटर के साथ साथ ऑलिव ऑयल, सोया, सारी तरह के फैट्स हैं, और कुछ अमाउंट में हम वो ले सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, दिन में 10 से 15 ग्राम फैट, मतलब 3 चम्मच 4 चम्मच, जो कि हमारे
खाने में सफिशिएंटली डलता है उतना हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए व्हाइट मीट जो है दैट इज हेल्दियर ऑप्शन देन कंपेयर टू द रेड मीट। तो बीफ या मटन से बेटर होता है कि अगर वो चिकन या फिश खाते हैं। सेलेक्ट लो फैट और लो रिड्यूस फैट वर्जन ऑफ मिल्क, है ना। ज़्यादातर डेयरी में हम जो मिल्क आता है वो वैसे ही मिक्स आता है वैसे तो, मगर जो हम पैकेट लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं रेड वाला जो होता है वो फुल फैट वर्जन होता है, उसके बाद ब्लू आता है, फिर येलो आता है। तो हम कोशिश करें कि हम लो फैट वर्जन को ही या लो फैट पैकेट्स को ही हम यूज करें। अवॉइड प्रोसेस्ड बेक्ड एंड फ्राइड फूड, ज़्यादातर तली हुई चीज़ें, हमारे जितने भी स्नैक्स हैं, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं हम लोग, है ना, भटूरे खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, टिक्की, है ना, सारी चीज़ें फ्राइड होती हैं। तो कोशिश करें कि हम उनको अवॉइड करें, है ना। और इसमें जो ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होती हैं जो स्नैक्स में होती हैं, ये एक ही तेल को बार बार गर्म करते हैं और ठंडा होने के बाद रख देते हैं, जब दोबारा कोई आए तो फिर गर्म करते हैं। तो तेल को बार बार ठंडा और गर्म होने की वजह से उसके अंदर फैट के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और वो ट्रांस फैट कन्वर्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और वो सीधे जाके हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो बाहर का खाना और इस तरीके का खाना अवॉइड करना इसलिए भी जरूरी है कि ये ट्रांस फैट हमें डायरेक्ट ले रहे हैं हम। फैट जितना जरूरी है वो ठीक है, मगर हम साथ में ऐसा फैट ले रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है हमारी बॉडी के लिए। ट्राई स्टीमिंग और बॉइलिंग इंस्टेड ऑफ फ्राइंग फूड व्हेन कुक्ड, है ना। कोई भी चीज को फ्राई करने से बेटर है कि हम उसको बॉइल्ड या स्टीम फॉर्म में खाएं। फोर्थ थिंग इज लिमिट शुगर इनटेक। हम लोग खाना खाते हैं, हम नहीं ध्यान देते कि क्या क्या हम खा रहे हैं, मगर अब से आप कोशिश करें कि ध्यान दें कि हम कितना खाते हैं, है ना। तो पूरे दिन में हमें 20 से 25 ग्राम तक शुगर खा सकते हैं, है ना, जरूरी है वो हमारे शरीर के लिए। मगर अगर हम देखेंगे तो एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर या जो पैक्ड कैन आता है आपके फ्रूट जूस का, वो ही अकेला ऐसा है जो आपके पूरे दिन भर की शुगर कंटेंट को पूरा कर देता है। तो अगर हम सोचिए हम इतना ज्यादा हम ले रहे हैं और दिन में हमने 2-3 बार इस तरीके की ड्रिंक्स ले ली, तो हमारे पास 3 से 4 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा शुगर बॉडी में पहले ही पहुंच चुका है ना। तो इस तरह ये इस चीज को हमें ऐसा ध्यान रखना है। एक चाय के अंदर 1 कप चीनी तो जाती है 1 कप चीनी के अंदर 1 चम्मच चाय तो वो चीनी जाती है ना, चाय में 1 कप चाय में। तो अगर हम दिन में 4-5 बार चाय ले लेते हैं तो 4-5 चीनी तो हमारी वैसे ही हो गई, चम्मच हो गई चीनी। तो 1 चम्मच में 5 ग्राम होता है, तो हम 4 से 5 चम्मच तक तो दिन भर में ले सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हम ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में नुकसान करना शुरू कर रहा है। तो आज से आप कैलकुलेट करना शुरू कर दें कि आप कितना लेते हैं और 4 से 5 चम्मच तक ले रहे हैं, या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है, आपको दौड़ना फिरना है, तो आप ज्यादा ले सकते हैं। मगर आपकी सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप बैठ के पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे हैं, थोड़ा बहुत ट्रेवल कर रहे हैं इधर उधर, तो उसमें सफिशिएंट है कि आप अपना 20 to 25 ग्राम शुगर लें और दैट इज इनफ। अगर हमें मीठा कुछ खाना भी है तो हम ट्राई करें कि हम नेचुरल शुगर्स की तरफ जाएं, फ्रूट शुगर्स की तरफ जाएं, है ना। हम फ्रूट्स खाएंगे, उसके अंदर हमें अपने आप मीठा मिलेगा। तो रिफाइंड शुगर से बेटर है कि आप फ्रेश फ्रूट्स की शुगर की तरफ जाएं, दैट इज हेल्दियर ऑप्शन। अनदर थिंग, स्टे हाइड्रेटेड, हमेशा पानी पीते रहें, है ना। पानी, हमारी बॉडी पूरी पानी की बनी हुई है, जैसा आप सभी जानते हैं 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंसिस्टिंग ऑफ वाटर। तो बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग हो, खाने को पचाने के लिए एब्जॉर्प्शन होने से लेके और पूरा सारा प्रोसेस, सबके लिए फूड हमें वाटर की जरूरत है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म चलते हैं सबके लिए, है ना, हार्मोन्स बनते हैं उनके लिए, सबके लिए हमें पानी की जरूरत होती है। तो अगर हम डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे नुकसान की रहेंगी जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी को वेस्ट निकालने के लिए जो जितना वाटर चाहिए, जितना हमारे हार्मोन्स को बनाने के लिए वाटर चाहिए, वो हमेशा कमी में रहेगा और जिसकी वजह से हम हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियों से, बीमारियों से घिरे रहेंगे। तो हम एक गुड अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं डेली, तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो गुड हाइड्रेशन इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमल हेल्थ व्हेनेवर available and safe for consumption. Tap water is the healthiest and the cheapest drinking option. And drinking water instead of sugar sweetened beverage. बाहर कभी भी हैं, बहुत प्यास लग रही है, ज्यादातर हम क्या करते हैं, अरे कोल्ड ड्रिंक पी लो ना। कोल्ड ड्रिंक से क्या नुकसान, पानी जो गया वो एक तो शुगर था, बहुत ज्यादा चीनी थी अंदर, तो हमने बहुत ज्यादा चीनी ली, और उसमें साथ में कैफीन होती है ना, कोल्ड ड्रिंक के अंदर इस तरीके के वो होते हैं जो कि हमें
और ज़्यादा प्यास लगाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन पैदा कर देते हैं, है ना, जिसकी वजह से हमेशा हमें टॉयलेट आएगा, यूरिन पास करेंगे और हमारी बॉडी फिर से डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो हमें हाइड्रेट करने के लिए कुछ लिया और वो हमें बल्कि उल्टा डिहाइड्रेट कर रही है। तो हमें कोशिश करना है जब भी हमें प्यास लगे तो हम पानी पिए अच्छे से, है ना। कभी भी इस तरह के ऑप्शन पे ना जाए कि हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या जूस पी लेते हैं पैकेट वाला, क्योंकि उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो हमेशा आपको और ज्यादा प्यास लगाएंगी। अनदर थिंग इज अवॉइड हजार्डियस एंड हार्मफुल यूज एल्कोहल यूज, है ना। बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेना है, ये हमेशा बॉडी को नुकसान करता है, हर तरीके से आपको ये नुकसान करेगा, ऑल नॉट ओनली फिजिकली, है ना। आपकी हर तरह से डिसीजेस इसके अंदर होंगी, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेस, मेंटल डिसऑर्डर, दिमाग खराब होने लग जाएगा, अलग अलग दिमाग की बीमारियां लगेंगी। साथ में ये आपको सोशली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा, आप समाज में उस तरीके से नहीं रह पाते एक समय के बाद जैसा आपको रहना चाहिए, लोग आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करते या आप लोगों को उस तरह से ट्रीट नहीं करते। इसकी वजह से आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर जाने की कोशिश करते हैं, घर परिवार, है ना, अपनी फैमिली, इन सब से अलग हटने लग जाते हैं। तो सोशली बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, फाइनेंशियली आपको बहुत वीक कर देगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ओवरऑल बहुत ज्यादा नुकसान करेंगी। और मेनली कोविड एरा के अंदर हमने देखा इस तरीके से कि जब अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से कोरोना भाग रहा है तो पीने से भी होगा, तो ये बहुत बड़ा मिथ और बहुत फालतू की एक बात थी, जिसकी वजह से लोगों ने अपने आप को नुकसान ही पहुंचाया अगर ऐसा कुछ किया तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये हमेशा हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को कम करेगा, है ना, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा। जब आदमी पूरा स्लो हो जाता है तो शरीर के अंदर जो फंक्शनिंग है वो कैसे अच्छी रह सकती है। तो जब बॉडी स्लो होगी और कभी भी उसको इन्फेक्शन से एक्सपोजर मिलेगा तो वो उससे लड़ नहीं पाएगा, इम्यून सिस्टम उसका हमेशा वीक रहेगा। और बच्चों के लिए खासतौर से जो यंग चिल्ड्रन और बेबीज हैं, इन्फेंट हैं, उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट थिंग। तो उनको ब्रेस्ट फीड करना है, माँ का दूध ही उनके लिए सबसे अच्छा आहार है। तो ये तो पूरा हमने पढ़ा अभी डाइट के बारे में, है ना। तो हम घर पे रह के कैसे एक हेल्दी डाइट को अपना सकते हैं। दूसरी चीज फिजिकल एक्टिविटी, हमें हमेशा रेगुलरली एक्टिव रहना है। फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प इन आवर रूटीन। और हम अपने एक मतलब अगर हम डेली स्पोर्ट्स में हैं, है ना, तो हम अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अपने दोस्तों से रेगुलरली मिलेंगे। हम घर बैठे बैठे वो सारी चीजें मिस कर रहे होते हैं, तो सोशली भी हम बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स से हम दूर जा रहे होते हैं, डिप्रेशन नहीं होगा, हम डेली फ्रेश होके आ रहे हैं, खेल के आ रहे हैं। एक कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि हम एक्टिव होने के बाद वो हमारे अंदर जगते हैं, जो कि हैप्पीनेस की फीलिंग लाते हैं। तो हमेशा आपने देखा होगा जब भी आप खेल के आएंगे, चाहे आप हारें या जीतें, है ना, मगर आपको हमेशा एक एनर्जी रहेगी बॉडी के अंदर, मेंटली भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। तो स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी इसलिए बहुत जरूरी है। दूसरा, कॉग्निटिव डिक्लाइन अगर हम नहीं करते हैं तो हम कॉग्निटिवली, मतलब हमें जो विचार, जो सोचने समझने की शक्ति है ना, डिसीजन लेने की पावर है, वो भी बहुत अच्छी रहती है अगर हम फिजिकल एक्टिव होते हैं, है ना। अब कितनी जरूरी है आपके एज ग्रुप में, आप ज्यादातर सब यंग एज ग्रुप, है ना, 20 साल से लेके आगे तक के बच्चे, तो आपकी एज ग्रुप में 18 साल से ऊपर कितना फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऑल एडल्ट शुड हैव एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी। मॉडरेट इंटेंसिटी, आप जॉगिंग कर रहे हैं, है ना, आप थोड़ी बहुत योगा कर रहे हैं, ये सारी मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटीज में आती हैं। तो पूरे एक हफ्ते में आप 150 मिनट, है ना, 150 मिनट पूरे एक हफ्ते में करना है। मतलब अगर आप इसको डिवाइडेड कर सकते हैं, आप हफ्ते में 3 बार या 4 बार डिवाइड कर सकते हैं, 50-50 मिनट 3 बार कर रहे हैं या 40-40 मिनट 4 बार कर ले रहे हैं, तो इस तरीके से आप हफ्ते में 3 से 4 बार आधे से पौन घंटे 1 घंटे तक फिजिकल एक्टिविटी करें। मॉडरेट अगर आप करते हैं, अगर आप विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, या आप कुछ जिम जा रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, तो उन सब चीज में इट इज इनफ टू हैव 75 मिनट्स ऑफ विग्रस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटीज थ्रू आउट द वीक, पूरे हफ्ते में, मतलब आधा घंटा रोज और हफ्ते में 4 दिन। अगर इतना भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं विग्रस तरीके से, तो वो भी आपके लिए बहुत रिकमेंडेड है। इतना, कम से कम इतना करना है ना। फिट रहने के लिए कम से कम आपको 150 मिनट मॉडरेट एक हफ्ते में और 75 मिनट विग्रस एक हफ्ते में, कोई सा भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग।
For additional health benefit, adults should increase their moderate physical activity to 30 minutes per week, है ना। ये आप 150 से स्टार्ट करें, ये रिकमेंडेड है। और अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी फिजिक अच्छी बनाना चाहते हैं, तो आप इसको 300 मिनट्स पर वीक, और उसी तरीके से अगर विग्रस कर रहे हैं तो 150 मिनट्स पर वीक आप कर सकते हैं। फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ, muscle strengthening activities involving major muscles group should be done on 2 or 3 or more days in a week, है ना। एक दिन में 2 से 3 बार मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करें। इन एडिशन ओल्डर ग्रुप विद पुअर मोबिलिटी, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जोड़ों में दर्द है, 60 साल से ऊपर हैं, तो वो बहुत ज्यादा विग्रस या मॉडरेट एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, तो वो दे शुड डू फिजिकल एक्टिविटीज टू एनहेंस बैलेंस एंड प्रिवेंट फॉल ऑन 3 और मोर डेज पर वीक। कम से कम 3 से 4 दिन अपना वॉक या इस तरीके से की माइल्ड एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहें। लास्ट थिंग जो हमने इसमें बात करी, 3 चीजें थी, हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर दिमाग में हमेशा एक डिप्रेशन बना हुआ है या डर बना हुआ है किसी बीमारी को लेके या किसी और कारण से, तो वो फिजिकल फिटनेस भी हमारे किसी काम की नहीं है अगर हम मेंटली फिट नहीं है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें रखनी है, अपना ध्यान रखना है जिन चीजों का। सबसे पहले कीप इन्फॉर्म्ड, हमेशा अच्छी जानकारियों के बारे में अपने आप को उससे भर के रखें, अच्छी जानकारी से, है ना। अच्छी जानकारी कहाँ से लेनी है? ट्रस्टेड न्यूज चैनल देखें, है ना, WHO की साइट्स, सोशल मीडिया जो कि ऑथेंटिक किसी सोर्स के हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन गैदर करें, जो कि आपके माइंड सेट को क्लियर करेगा, है ना। वो चीजें डराएंगी नहीं, कुछ ऐसी चीजों में ना जाएं जो गलत आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना। हैव ए रूटीन, अपना एक्सरसाइज करने का, खाने पीने का, आपकी डेली एक्टिविटीज, आपको काम पे जाना है ना। अगर लॉकडाउन रहा था तो लॉकडाउन में ऐसा नहीं कि घर पे ही बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ जो काम पे करते रहें, वो सारी चीजों पे ध्यान रखें। तो कीप अप विद डेली रूटीन्स एज फार एज पॉसिबल टू मेक न्यू वंस, कोशिश करें नई नई एक्टिविटीज, कुछ नया सीखने का हमेशा अपने दिनचर्या में ऐड करते रहें कि आज हमें ये नया करना है, आज कुछ एक नई चीजें सीखनी है, या दोस्तों से मिलके हमें आज ये सारी चीजें, एक ग्रुप इकट्ठा होके हम लोग कुछ नया खेलेंगे या कुछ भी करेंगे। तो कुछ ना कुछ नए के लिए हमें सोचते रहना है, प्लान करते रहना है। गेट अप एंड गो टू द बेड एट द सिमिलर टाइम, डेली एक रूटीन करना है। बहुत लंबे समय तक सोना या बहुत लेट तक जग के रात को मोबाइल पे या टीवी पे, लैपटॉप पे लगना, वो सारी चीजें हमारी रूटीन को बिगाड़ती हैं, जिसकी वजह से हम एट लास्ट मेंटली इल होने लग जाते हैं, डिप्रेशन में आने लग जाते हैं। अच्छा खाना खाना, अच्छी एक्सरसाइज करना डेली, ये सारी चीजें रूटीन में है। दूसरा, मिनिमाइज द न्यूज फीड्स। हमें बहुत ज्यादा नॉलेज लेके और ये सोचना कि मैं अपडेट रहूं हमेशा, हमें इन्फॉर्म्ड रहना है हर चीज के बारे में। ओमिक्रॉन आ रहा है, हमें पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे है, कहाँ से निकला, बस उसके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेके और उसको व्हाट्सएप पे डालना है, या हम खुद उससे डर के रहें, वो सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। जो बहुत ज्यादा अगर हम न्यूज के बारे में घुसते रहेंगे, देखते रहेंगे और उनसे चिंतित रहेंगे, तो वो हमें मेंटली परेशान कर सकती है। सोशल कॉन्टेक्ट इम्पोर्टेंट है ना। लॉकडाउन के अंदर हम नहीं मिल पाए लोगों से, लॉकडाउन के बाद अगर हम मिल रहे हैं तो हम ओपन गैदरिंग रख सकते हैं। ज्यादा ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा किसी क्लोज कांटेक्ट में रहें, मगर हम ओपन गैदरिंग कर सकते हैं। और आजकल तो किसी से भी मिलना कोई वो नहीं है ना। हम लोग सोशल मीडिया से, हम लोग इंटरनेट से किसी से भी पूरे वर्ल्ड में मिल सकते हैं। Thank you so much, Okay, Dr. Himalia, thank you so much, sir. to be Thank with you so us much, sir. and with